हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रीडिंग सेशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद बुक्स। अभी हम पढ़ रहे हैं बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ का सेकंड चैप्टर और आज हम कंटिन्यू करेंगे इस पैराग्राफ से। हाउएवर हम प्रणाम मंत्र के साथ स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए स्टार्ट करते हैं ना हम रीड करना। ओके, तो हाउएवर से कौन पढ़ना स्टार्ट करेगा? एनीवन? अर्पिता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। Hare Krishna. However, as living entities, we want enjoyment. Being in itself is not enough. We want bliss, Anand, as well as being Sat in his entirely. The living entity is composed of three qualities: eternal, eternality, knowledge, and bliss. Those who enter impersonally into the Brahma Jyoti can remain there for some time in full knowledge that they are now merged homogeneously with Brahman, but they cannot have that eternal Anand bliss because that part is wanting. One may remain alone in a room for some time and may enjoy himself by reading a book. Sorry, or engaging in some thought, but it is not possible to remain in that room for years and years at a time, and certainly not for all eternity. Therefore, for one who merges impersonally into the existence of the Supreme, there is every chance of falling down again into the material world in order to acquire some association. This is the verdict of Srimad Bhagavatam. Astronauts may travel thousands and thousands of miles, but if they do not find rest on some planet, they have to return again to Earth. In any case, rest is required. In the impersonal form, rest is uncertain. Therefore, Srimad Bhagavatam says that even after so much endeavor, if the impersonalist enters into the spiritual world and acquires an impersonal form, he returns again into the material world because of neglecting to serve the Supreme Lord in love and devotion. As long as we are here on earth, we must learn to practice to love and serve Krishna, the Supreme Lord. If we learn this, we can enter into those spiritual planets. The impersonalist position in the spiritual world is non-permanent, for out of loneliness, and he will attempt to acquire some association because he does not associate personally with the Supreme Lord. He has to return again to the material world in order to acquire some association. हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। तो हाउएवर एज लिविंग एंटिटीज वी वांट एन्जॉयमेंट, है ना? तो सभी को एन्जॉयमेंट चाहिए होता है। दिस इज़ द नेचर ऑफ आर आर सोल। ये सोल का ही नेचर होता है। तो बीइंग इन इट सेल्फ इट इज़ नॉट इनफ। ठीक है।
हमें क्या चाहिए, आनंद चाहिए, है ना, ब्लिस चाहिए, एज वेल एज बीइंग सत। सत मीन्स कि हम इटर्निटी, कि हमें चाहिए, ऐसे नहीं कि हमारी लाइफ स्टार्ट हो देन डेथ आ जाए, वी वांट द इटर्नल फॉर्म ऑफ आर्स। तो कोई भी मरना नहीं चाहता, इसी रीज़न से इसी का रिजल्ट होता है कि हमें मरना नहीं चाहिए, मतलब। हरे कृष्णा। ओके। तो किसी को भी मरना नहीं है, लेकिन मरना तय है बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल नेचर। तो द लिविंग एंटिटी इज कंपोज्ड ऑफ थ्री क्वालिटीज़, क्या क्या? एटर्निलिटी, नॉलेज एंड ब्लेस। आनंद, ज्ञान और शाश्वत रहना, हमेशा के लिए रहना। तो दोज हु एंटर impersonally into the Brahma Jyoti can remain there for some time in full knowledge that they are now merged homogeneously with Brahman. But they cannot have the eternal Anand bliss because the part is wanting. हरे कृष्णा। श्वेता माता जी, आप एक्सप्लेन करना प्लीज ये वाला पार्ट। हरे कृष्णा बोलिए। ये जो पार्ट है, impersonally into the Brahma Jyoti, those who enter impersonally into the Brahma Jyoti. जस्ट अ सेकंड, मैं करती हूँ एक सेकंड। Okay. Okay, so Shadru, tell me which line is it? It is the Mhm. थर्ड लाइन ना, सेकंड लाइन के लास्ट में दोस्त से स्टार्ट होकर के द थर्ड कंप्लीट लाइन। The third line, okay. Wait. All right. So this paragraph में basically start यहाँ से किया गया है। आदित्य कुमारी, ओके। सो व्हाट इज सेड स्टार्टिंग में क्या बोला गया यहाँ पे कि हर इंसान को कुछ रस चाहिए, कुछ ब्लिस चाहिए, राइट? एंड हर इंसान उसके लिए समवन इज रेडिंग एट समथिंग। ओके, आप एक्सप्लेन जतिन और एनीबॉडी हु वाज रेजिंग हैंड्स, आप लोगों को बोलना और शुड आई कंटिन्यू? ओके ओके, आदित्य डू यू वांट टू से समथिंग? Yes. हाँ बोलिए बोलिए। Okay. So actually वो जो line है कि those who enter impersonally into the Brahma Jyoti can remain there for some time in full knowledge that they are now merged homogeneously with Brahman. But they cannot have that eternal Ananda bliss because that part is wanting. तो इसमें ये इस लाइन में ये कहा जाता है कि एक इंसान, हर लिविंग एंटिटीज में थ्री क्वालिटीज होती है, दैट इज एटर्नलिटी, नॉलेज एंड ब्लिस। तो जो भी इंसान अगर वो इम्पर्सनल होके, मतलब विदाउट विल वो उतना पर्सनली उस चीज में इमर्ज नहीं होता है, तो इफ ही गोज इनटू ब्रह्म ज्योति मीन्स जब हम लोगों को भगवान का लाइट मिलता है, when we are into the light of Brahman, तो when जब एक इम्पर्सनल इंडिविजुअल बिना मन के जो ब्रह्म ज्योति में जाता है, तो वो बहुत फुल टाइम तक उसको नॉलेज मिलता है। बट द थिंग इज कि ही विल नॉट बी मर्ज्ड विद द ब्राह्मण, बिकॉज उसको कुछ काइंड ऑफ वांटिंग रहता है जो कि he will not be able to practice or that he will not be able to enjoy in that Brahma Jyoti. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके। जीव होने के नाते हम भोग चाहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा, जो मैंने हिंदी ट्रांसलेशन है वो पढ़ के एक बार इसको थोड़ा कंफर्म और अच्छे से पढ़ते हैं। अदिति जी, आपने बहुत अच्छा बताया, हरे कृष्णा। जीव होने के नाते हम भोग चाहते हैं,
केवल होना ही पर्याप्त नहीं है, हम होने के साथ साथ परम आनंद भी चाहते हैं। मतलब एग्जिस्टेंस के साथ वी वांट टू एंजॉय, है ना। जीव अपने संपूर्ण स्वरूप, हाँ मुझे भी लग रहा है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड श्वेता माता जी टू एक्सप्लेन। लेकिन कोई बात नहीं, ओके, साथ शुड आई में डू? ग्रुप। हाँ हाँ, ओके ओके माता जी। ओके, हरे सो कृष्णा। बेसिकली एकदम इजीली हम समझाते हैं आपको, ठीक है। तो क्या बताया गया है, हर इंसान को, हम एज द लिविंग भी, हम सबको कुछ ब्लीस चाहिए, हमें कुछ एंजॉयमेंट चाहिए, राइट। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, हम लोगों को एंजॉयमेंट चाहिए, इसके लिए हम कुछ खाते हैं, करते हैं, राइट। तो उसी ब्लीस के बारे में फर्स्ट लाइन में बात की जाइए। ओके, वी वांट ब्लीस, मतलब हमें आनंद चाहिए, ठीक है। और हम जो सत्य की बात करें वो हमारे सोल की बात करेंगे। इट इज द सत्य, लाइक जो अल्टीमेट ट्रूथ है, दैट इज द सोल। ओके, नाउ इन दिस एंटायरली, इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि हम जो भी एक लिविंग एंटिटी होता है, उसके अंदर थ्री मेन क्वालिटी होती है कि वो एक एटर्नल है, मतलब सोल नेवर डाइज, राइट। सो इट इज एटर्नल। ओके, इट हैज नॉलेज, बट नॉलेज इज एवर चेंजिंग। ओके, नॉलेज इज नॉट एटर्नल, नॉलेज इज एवर चेंजिंग। नाउ दैट इज ब्लिस। एक जो इंडिविजुअल होता है, दैट उसकी जो सोल होती है, दैट इज एटर्नल। ओके, इट पोजेस नॉलेज एंड इट लैग्स और इट हैंकर्स आफ्टर व्हाट, वो हैंकर किसके प्रति करती है, ब्लिस के, ठीक है। मतलब कुछ आनंद के प्रति। तो इसमें क्या कहा गया, जैसे कोई इम्पर्सनल मतलब बोला गया है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल सोल। जैसे एक इंडिविजुअल सोल ब्रह्म ज्योति, मतलब भगवान के बारे में बात हो रही है। जैसे ही एक इंडिविजुअल सोल भगवान में जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड, गेट मोक्ष, तो वो क्या होता है, उसको कंप्लीट नॉलेज मिलती है। उसकी नॉलेज क्या हो जाती है, उसकी फुल नॉलेज हो जाती है, उसको क्या हो जाता है, कंप्लीट नॉलेज हो जाती है। और क्या लिखा है, दैट दे आर मर्ज ह्यूमन विद ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब भगवान के बारे में बात किया जाए, ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान की ज्योति को ही ब्रह्म ज्योति कहा जाए। इट्स लाइक इंटरचेंजेबली वो कॉन्सेप्ट जो है, टर्म जो है वो यूज किया जाता है। ओके, अब बेसिकली ये बताया गया है, बट इंडिविजुअल, अब जब अब ब्रह्म जो इंसान था, इंडिविजुअल लिविंग एंटाइटी था, जब वो ब्राह्मण में इन आया, समझो, उसका जो मिक्स हुआ अगर वो लोग, तो क्या होता है, उनके एटर्नली जो होता है ना, वो ब्लिस नहीं रह पाता। क्यों बताया गया, देखो उधर, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो अलोन रहता है। आई रीड फॉर दैट फॉर ऑल ऑफ यू। वन में रिमेन अलोन इन अ रूम फॉर सम टाइम एंड मे एंजॉय, एक सेकंड, समवन वांट टू जॉइन। हाँ, one may remain alone in a room for some time and enjoy himself by reading a book and getting some thought. It is possible to remain that room for years at a time and certainly not internally. Therefore, for one who emerges impulsively into the exercise of okay, तो बेसिकली कहा जाता है हम लोग बेसिकली whenever we are taking guide, whenever we are doing bhakti or something, we need some guidance. हम खुद से भक्ति नहीं कर सकते, राइट। हम लोगों को that time we need some guru, राइट। impersonally मतलब जैसे individually, जैसे I am not taking guidance of any scriptures or I am not taking guidance of any guru एंड आई एम इम्पर्सनली, अगर मैं खुद से भक्ति करी, वही इधर बताएगा, अगर इंसान इम्पर्सनली खुद से भक्ति करेगा, देन दैट पर्सन वो लॉन्ग टर्म में भक्ति नहीं कर पाए। जैसे हम अपने रूम में बैठ कर मैं डेली बुक रीड करी, वहीं पे एग्जांपल दिया है। वी कैन, हम लोग वो बुक कुछ टाइम तो समझेंगे, बट एटर्निटी या फिर फॉर लॉन्ग टर्म विल नॉट अंडरस्टैंड दैट नॉलेज एंड विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज। ओके, तो वहाँ यहाँ पे यही बताया गया है, जो एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल सोच होती है, उसकी थ्री क्वालिटी होती है। क्या होता है कि वो एटर्निटी है, वो लाइफ लॉन्ग जिएगा, उसके पास नॉलेज होता है। ओके, दैट नॉलेज इज एवर चेंजिंग। और ब्लिस, ब्लिस क्या, कि वो ब्लिस के आफ्टर हैंकर करता है। ओके, एंड जैसे ही उसको ब्रह्म ज्योति या फिर आप ऐसे समझो गुरुदेव का जो इम्पर्सनली भगवान नॉलेज में आता है, देयर इज एवरी चांस ऑफ फॉलिंग डाउन। वो मतलब अगर मैं भक्ति विदाउट एनी इम्पर्सनली करूंगी और विदाउट एनी गुरुदेव, तो 100% चांसेस है कि मैं फॉल डाउन करूंगी इनटू द मटेरियल वर्ल्ड इन ऑर्डर टू एक्वायर सम एसोसिएशन, कि मुझे किसी का साथ मिले, राइट। देयर इज द वर्ड ऑफ श्रीमद् भागवतम, एस्ट्रोनॉट ट्रेवल थाउजेंड ओके, तो यहाँ पे बताया गया कि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ पर, यूनिवर्स। प्रभु तुषार प्रभु, डू यू वांट टू एक्सप्लेन और शुड आई कंटिन्यू? नहीं नहीं माता जी, आप कंटिन्यू करिए। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अगर अच्छा सबको समझ में आ रहा है, शो मी अ थम्स अप। इफ डाउट है यू कैन, चलो माता जी आप ज्यादा हिंदी में बोलिए। ओके, सर मैं ये रीड करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन। दिस इज द वर्ड ऑफ if they do not rest on some planet, they have to return on Earth. In any case, rest is required. If the person will form rest is uncertain, Srimad Bhagavatam says that even if a soul deliver its own person in the spiritual world and acquire an personal form, it returns again to the world. Oh my God, wow.
world because we will get this percentage. As long as we are on earth, we must learn to practice love and of Krishna. Okay, if we learn this, we enter into the spiritual planets. The emphasis position in the spiritual world is non-permanent. For hour of loneliness, he will attempt to acquire some association because it does not associate personally with the Supreme Lord. He has to return to the association with the conditioned. Condition के नीचे क्या प्रॉब्लम थोड़ा सा नीचे करिए. कंडीशन लिविंग एंटाइटी इज दैट ओके तो बेसिकली कहा गया है जैसे इंडिविजुअल अगर कोई भी इंडिविजुअल सोल है इंडिविजुअल बीइंग डिवोशनल प्रैक्टिस कर रहा है इम्पर्सनली विदाउट टेकिंग एनी गाइडेंस ओके जो मैंने उस दिन बताया था कि जो गुरु परंपरा में हम लोग को नॉलेज और गाइडेंस लेके ही भक्ति करना चाहिए आइदर हमें फिर से आना पड़ेगा तो वही यहाँ पे बताया गया कि श्रीमद भागवतम में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल बहुत अच्छे अच्छे कर्म किया और देयर आर मेनी प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स राइट तो अगर आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए या फिर आपने अच्छी से भक्ति भी की बट नॉट लाइक कंप्लीट भक्ति और नॉट सक्सेसफुल होगी मगर आपने कम थोड़ी बहुत भक्ति की एंड उसकी वजह से आपको जो एस्ट्रोनॉट्स के में बताया गया ना यहाँ पे वही बताया गया कि यू विल गेट अ बेटर प्लैनेट्स आप बट हायर प्लैनेट्स पे रहोगे या फिर ऐसे भी होगा कि आप गोलोक धाम भी जाओ भगवान के but आप और वहां पे कुछ वहां पे ना सारे लिविंग वाटर एंड एवरीथिंग ना वहां पे नॉन लिविंग थिंग भी ना लिविंग तो भगवान आप हरे कृष्णा माता जी, आपका थोड़ा वॉइस अगर ब्रेक हो रहा है. हरे कृष्णा, थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है. आवाज आ रहा है मेरा अभी आ रही है, अभी आ रही है. ओके ओके श्वेता माता जी वॉइस अनक्लियर है बहुत ब्रेक हो रहा है ओके ओके शर्मा भी माता जी और लड़ा पा रहा है ना ओके तो हमने कहाँ तक सबने सुना तुषार प्रभु कहाँ तक बताइए मेरी हमने सुना लास्ट वर्ड क्या सुना होगा लास्ट वर्ड हमने सुना कि जब कोई चले जाता है ब्रह्म ज्योति में मिल जाता है, ऐसा आप बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे वो. आफ्टर रीडिंग ब्रह्म ज्योति वाज द लास्ट पॉइंट राइट मैंने रीड किया तो एस्ट्रोनॉट से स्टार्ट किया सो उसमें कहाँ से किसी को भी बताओ निशिता आदिति लास्ट वर्ड क्या था ओके लेट्स सी अगर आपको नहीं पता तो हाँ बोलिए आपने बोला था कि अगर हम परफेक्टली भक्ति ना करें तो हमें हायर प्लैनेट मिल सकता है हमें मोक्ष नहीं हमें गोलोक धाम भी मिल सकता है उत्ता तक ओके तो बेसिकली अगर किसी ने भक्ति की बट और वो लोग तो लाइक उनकी भक्ति कंप्लीट नहीं है बट इन केस इफ दे वो उनको गोलोक धाम मिला मतलब उनकी भक्ति इतनी कंप्लीट नहीं हुई कि उनको गोलोक धाम मिला और यू कैन से कि उनकी इतनी भक्ति कंप्लीट है कि वो गोलोक धाम में जाके फिर कृष्णा को सर्व करे बट इन केस इस कोई भी इंडिविजुअल है जिसने भक्ति की और वो गोलोक धाम गए और वहां पे गोलोक धाम में ना वाटर जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती है जैसे वॉल हो गया वाटर हो गया राइट ये सब नॉन लिविंग चीज होती है पर वहां पे ना सब चीज लिविंग होती है तो अगर हम जैसे हम अगर भक्ति करते हैं तो वहां पे जाके वो वाटर बनेगा फ्लावर बनेगा अलग अलग चीज बनता है टू सर्व कृष्णा तो अगर हम लोग हायर प्लैनेट पे गए या फिर हम गोलोक धाम में गए we are not- हाँ, यहाँ पे करें, उसमें ये लिखा in the spiritual world non-permanent. Out of loneliness, he will attempt to acquire some association because he does not associate personally with the Supreme Lord. अगर इस लाइफ में या फिर हम लोग को गोलोक धाम मिला और वहां पे हम लोग सर्व नहीं करे कृष्णा को तो हम कोशिश करते क्योंकि हम लोग सर्व नहीं करे तो वी विल ट्राई टू एसोसिएट विद समवन राइट और हम लोग को अगर एसोसिएट नहीं करेंगे विद द लॉर्ड एंड द सुप्रीम लॉर्ड उनको हम सर्व नहीं करेंगे तो हम लोगों को फिर से धरती पर आना पड़ेगा ओके तो विद कंडीशन फिर हमें आके किससे एसोसिएशन करना पड़ेगा लिविंग एंटाइटी से जो कंडीशन कंडीशन मतलब जैसे जिनको मायावादी लोग है ना उनको कंडीशन तो सबको अगर समझ में आए तो thumbs up करो जय गेट लगा दे, जय गेट लगा दे. हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा समझ आ गया है, बहुत परफेक्ट समझ आ गया. आई थिंक सबको समझ में आ गया है. प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप. अच्छा, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया है सो दैट हम एक थम्स डाउन कीजिए जिससे हम दोबारा डिस्कस करें एंड देन फिर और परफेक्ट समझ आ जाए. मतलब अगर किसी को नहीं आया तो
ओके ओके, अनु जी को नहीं आया, अर्पिता जी को नहीं आया, ओके ओके ओके, किरण जी को नहीं आया। प्रभु जी, एक लास्ट एक कंक्लूजन चाहिए, लाइक पूरा श्वेता ओके माता जी जो बोली और थोड़ा कंक्लूजन। ओके ओके, ओके थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आया। ओके, आई विल डू, नो माइंड। तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ का एक कंक्लूजन दे देते, ओके। इसमें क्या कहा गया, प्रभु थोड़ा सा ऊपर करेंगे। हाँ, ओके फाइन। तो बेसिकली पैराग्राफ में ऊपर, प्रभु जी ऊपर, लेट मी सी द फर्स्ट वन, या। तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हर इंडिविजुअल जो है उसे कोई एंजॉयमेंट चाहिए, राइट। हम सबको कोई एंजॉयमेंट रहता है, राइट। ऐसा रस चाहिए रहता है, फिर कुछ प्लेजर चाहिए रहता है, जिसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, करते हैं, देखते हैं, राइट। यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट होने का बताया गया है कि कैसे हर जो भी जितने भी लिविंग एंटिटी है, मतलब जितने भी सोल है, उन सबको कुछ नेचर होता है। क्या नेचर होता है सोल का, कि द सोल हैव सम नॉलेज, ओके। द सोल इज एटर्नल, एटर्नल मतलब सोल नेवर डाइज, ओके। सो इट इज द नेचर। हमें भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में बताया गया कि सोल नेवर डाइज। हरे कृष्णा। माता जी वॉइस फिर से ब्रेक हो रहा है थोड़ा। हरे कृष्णा, अब आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा। जीव क्यों वापस गिर जाता है? कोई बात हाँ, नहीं, आ रही है बाबा। माता जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, अगर मैं ओके, समराइज कर देता हूँ। ओके, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? गिव मी थम्स अप प्लीज़। ओके, तो नाउ बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करा है श्वेता माता जी ने। प्लीज़ आप सभी क्लैप्स कर दीजिए एक बार, है ना, क्लैप्स भेज दीजिए, बहुत परफेक्ट है। और यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पर्सनल, है ना। तो इम्पर्सनल पहले हमें ना एकदम स्टार्टिंग से चलेंगे और लास्ट तक समझेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि है ना, लिविंग एंटिटीज़ जो होती है, वी वांट एन्जॉयमेंट। और जो सोल होती है, द एक्चुअल सेल्फ, द सोल हैव थ्री क्वालिटीज़। इट इज़ इटर्नलिटी, विच इज़ द लाइक द ओनली बेस्ट क्वालिटी ऑफ द सोल, जो कभी भी उससे जुदा नहीं होती है। और नॉलेज जो होती है वो आती जाती रहती है ना, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन हमें नॉलेज मिलती है, नॉलेज नहीं मिलती है। एंड ब्लेस, आनंद, जिसके पीछे हम हैंकर करते हैं, वेदर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में हम मटेरियल एन्जॉयमेंट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं रादर देन स्पिरिचुअल एन्जॉयमेंट। और जब हम भगवान के धाम में होते हैं तब हमारा स्पिरिचुअल एन्जॉयमेंट ज़्यादा होता है, इफ़ यू आर इन नॉलेज ऑफ भगवान, ओके। तो अब क्या होता है कि दोज हु एंटर इम्पर्सनल इनटू द ब्रह्म ज्योति मीन्स, जो भगवान के धाम पहुंच जाता है, जो मोक्ष प्राप्त करता है, बीइंग इम्पर्सनल मतलब निराकारवादी, जो भगवान के स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं करता है, जो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो व्यक्ति अगर बिकॉज ऑफ गुड डीड्स और, है ना, कुछ शास्त्र फॉलो करके वो पहुंच जाते हैं, तो उनका वहाँ पे पहुंचना, दैट इज़ क्षण भंगुर। क्षण भंगुर का मतलब होता है फॉर वेरी लिमिटेड टाइम। और ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक तो सबको समझ आता जा रहा है ना। गिव मी थम्स अप। ओके, तो being there into the Brahma Jyoti can remain there for some time in full knowledge that they are now merged homogeneously with Brahman, but they cannot have that eternal Anand bliss because that part is wanting. अब क्या होता है, बिकॉज दे आर इम्पर्सनल, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग भगवान, तो अल्टीमेटली दे आर लैकिंग वेरी मेजर पार्ट, दे आर लैकिंग। ब्रह्म ज्योति मीन्स हायर प्लैनेट्स, ओके। तो जो हायर प्लैनेट्स में चल जाता है, मतलब स्पिरिचुअल प्लैनेट में चल जाता है ना, तो फॉर देम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको मतलब भगवान का नॉलेज होना चाहिए ना। मतलब भगवान को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो भगवान को निराकार रूप में देखते हैं वो, कि भगवान फॉर्मलेस हैं। तो बट दे कैन नॉट हैव द इटर्नल आनंद ब्लेस बिकॉज दैट पार्ट इज वांटिंग। वन में रिमेन अलोन इन अ रूम फॉर सम टाइम। अब देखिए क्या होता है, कोई व्यक्ति रूम में रह सकता है ना, ये ऐसा है कि भगवान के धाम में रह के भी पता नहीं होना कि भगवान कौन है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि वन कैन रिमेन अलोन इन अ रूम फॉर सम टाइम एंड मे एंजॉय हिमसेल्फ बाय रीडिंग अ बुक और एंगेज इन सम थॉट, but it is not possible to remain in that room for years and years at a time, and certainly not for all eternity. इसका मतलब है कि that if someone is somewhere और उन्हें पता ही नहीं कि वहाँ पे रहने का रियल पर्पस क्या है, तो फिर
लौटना उनका बन जाता है. Therefore, for one who merges impersonally into the existence of the Supreme, there is every chance of falling down again into the material world in order to acquire some association. तो फिर इससे क्या होता है ना, फिर उनको एसोसिएशन के लिए दोबारा से भूलोक में आना पड़ता है. और ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया है. जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, अगर वो जा रहे हैं, है ना, रॉकेट में, स्पेसशिप में बैठ करके, इज समवन हु फॉर्मलेस, ओके, है ना, मायावादी फिलॉसफी दैट भगवान इज फॉर्मलेस. ठीक है. तो अब क्या होता है कि अगला एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट रॉकेट में बैठ के जाता है और उनको कोई स्पेस नहीं मिल रहा है बैठने के लिए, कोई रेस्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो वो इस भ्रमण करके वापस आ जाएंगे, यहीं आना पड़ेगा वापस, है ना. लेकिन टू सेटल डाउन दे नीड सम नॉलेज, दे नीड सम रेस्ट एट सम पॉइंट. तो इसी तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन कहाँ से किया है, भगवान के धाम से कंपैरिजन किया है. दैट even after so much endeavor, if the impersonalist enter into the spiritual world and acquires an impersonal form, तो बिकॉज वो भगवान के फॉर्मलेस होने को देखते हैं, तो ही रिटर्न्स अगेन इनटू द मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ नेग्लेक्टिंग टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड इन लव एंड डिवोशन. वहाँ जाके बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन भगवान, कि भगवान की फॉर्म है ना, और भगवान को हम सर्व कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे हैंकर करने लग जाते हैं. फिर से उनका अटेंशन भगवान की तरफ ना होके कहाँ होता है, सेल्फ प्लीजिंग होता है. एज लॉन्ग एज वी, क्योंकि देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा कि ब्लिस इज द पार्ट ऑफ द सोल, जो सोल को चाहिए होता है. लेकिन नाउ द रियल ब्लिस इज व्हाट, रियल ब्लिस इज टू सर्व कृष्णा. लेकिन अगर आप रियल ब्लिस की तरफ ना जा करके फॉल्स ब्लिस की तरफ जाएंगे, सेल्फ एन्जॉयमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे रादर देन द एन्जॉयमेंट ऑफ कृष्णा, तो देन देयर इज द कंप्लीट चांस ऑफ योर्स टू फॉल डाउन अगेन इनटू द भूलोक. फिर आपको लौट के वापस आना पड़ता है. द इम्पर्सनलिस्ट पोजिशन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नॉन परमानेंट. तो जो इम्पर्सनलिस्ट पोजिशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये परमानेंट नहीं है, ये नॉन परमानेंट है. फॉर आउट ऑफ लोनलीनेस ही विल अटेम्प्ट टू अक्वायर सम एसोसिएशन बिकॉज ही डज नॉट एसोसिएट पर्सनली विद द सुप्रीम लॉर्ड. क्योंकि भगवान के डिवोशनल सर्विस में वो एंगेज नहीं हो रहे हैं, तो he has to return again to the world and associate with conditioned living entities there. तो बिकॉज फिर उनको दोबारा से भूलोक में आना पड़ जाता है, और माया में रहने वाले बद्ध जीव जैसे हम है ना, हैविंग मटेरियल बॉडीज, उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनके साथ एसोसिएट करना पड़ता है. तो नाउ गिव मी थम्स अप, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, है ना, इफ समझ आ गया तो ओके ओके. अच्छा, तो इससे मुझे ना एक चीज़ याद आई. तो आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था ना कि भगवान का धाम कैसा होता है. ठीक है. तो भगवान का धाम कैसा होता है कि वहाँ पे भी लोग होते हैं, और वहाँ पे भी घर होते हैं, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में भी लोग रहते हैं. वहाँ पे भगवान की कैसे बातें होती है, तो वहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद, जो पर्पट है उसको स्टार्ट ही ऐसे करते हैं श्रीमद् भागवतम में, कि भगवान का धाम इज़ फुल ऑफ ओपुलेंसेस. ओपुलेंसेस मतलब बहुत वेल डू. जैसे होता है ना कि शहरों में हम कहते हैं दिस इज़ द स्लम एरिया एंड दिस इज़ अ वेल डूइंग एरिया. यहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे परिवार रहते हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव वेरी नाइस कार्स, दे हैव मर्सिडीज, ऑडी एंड सो. तो ऐसे ही भगवान का धाम इज़ फुल ऑफ ओपुलेंसेस बिकॉज एवरी वन देयर हैव अ प्राइवेट जेट. एवरी सोल हैव देयर प्राइवेट जेट, और वो प्राइवेट जेट में ही घूमते हैं. प्राइवेट जेट मीन्स कि उनके पास है ना घूमने वाला, मतलब ऐसे हवा में चलने वाला विमान होता है ना. नॉर्मल रोड पे कोई नहीं चलता, विमान में चलते हैं. एंड किसके साथ चलते हैं वहाँ पे बताते हैं. एक टर्म होती है संस्कृत में जिसका मीनिंग होता है स्वीट हार्ट. विद देयर स्वीट हार्ट्स दे ट्रैवल इन द प्राइवेट जेट. तो यहाँ पे स्वीट हार्ट से मतलब है देयर वाइफ्स. ओके. एंड स्टिल ऑल ऑफ देम आर एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस ऑल द टाइम. अब जैसे नहीं होता है, हम ट्रैवल करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई बुक पढ़ लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, आपस में बातें कर लेते हैं परिवार की.
लेकिन वहाँ पे वाइल ट्रैवलिंग इन अ प्राइवेट जेट विद देयर स्वीट हार्ट्स, व्हाट दे ऑल आर डूइंग, दे आर कॉन्टिन्यूसली एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, पुष्पक विमान जैसे, है ना। तो ऐसे ही विमान होते हैं सबके पास। सबके पास बहुत सारे ऑपुलेंसेस होते हैं, बहुत वेल्थ होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और स्टिल दे ऑल आर एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। वाई? बिकॉज दे आर इन नॉलेज ऑफ कृष्णा, दे नो हु इज कृष्णा, and they are getting so much bliss while serving Krishna. This is a reciprocating relationship with Krishna, that if we are engaged in the service of Krishna, we are automatically satisfied by the devotional service alone. भले ही प्राइवेट जेट भी नहीं होना, एक बैलगाड़ी भी हो, वी आर सेटिस्फाइड जस्ट बिकॉज वी आर सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उस लेक्चर में, अब मैं उस लेक्चर्स के थोड़े थोड़े पार्ट बता रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे अगर हम किस स्थिति में वहाँ पे रहा जाता है, ठीक है, वहाँ पर लोग रहते हैं तो कैसे रहते हैं, क्या बातें करते हैं। तो कहते हैं वहाँ पे जो ब्रीज होती है, हवा चलती है, तो हवा में जो वहाँ पे फ्लावर्स होते हैं उनकी फ्रेगनेंस तो होती है, साथ ही में एक टेस्ट होता है। किसका? हनी जैसा टेस्ट होता है ना। मतलब बहुत बहुत ऐसी मेलो चलती है, बहुत अच्छी हवा चलती है जिसमें कुछ टेस्ट होता है, बहुत स्वीट हवा चलती है। और वहाँ के लोग जो वैकुंठ धाम के वासी हैं, वो सोचते हैं कि वी आर एंगेज्ड इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा, एंड ये ब्रीज हमें क्या कर रही है, बीच में डिस्टर्ब कर रही है। बिकॉज फॉर देम सेल्फ एन्जॉयमेंट इज नॉट द प्रायोरिटी, द एन्जॉयमेंट ऑफ कृष्णा इज द प्रायोरिटी, देन एवरीथिंग कम्स इन द सेकेंडरी पार्ट। तो बहुत प्यारा है, मतलब वहाँ पे अगर आप देखें, मतलब वैकुंठ कैसा है, ये लेक्चर था। आई शेयर द लेक्चर इन आर ग्रुप, है ना, आप पूरा सुनिए उसको, बहुत सुंदर लेक्चर था। तो यहीं पे अगर उस लेक्चर के रेफरेंस से हम यहाँ बात करें, कोई अगर वैकुंठ धाम में रह करके भगवान की सेवा नहीं करता है और भगवान के रूप को नकारता है, तो उस सोल की, उस व्यक्ति की वहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है वो नॉन परमानेंट हो जाती है, एंड दे हैव टू फॉल डाउन अगेन इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड विद द कंडीशनड सोल्स। और यहाँ पे फिर आपको पता ही है, फॉल्स डेजिग्नेशन, इसके मम्मी, उसके पापा, इसका भाई, उसकी बहन, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते नातों में हम बदल जाते हैं, उसके ऊपर फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़े ना, तो बहुत कुछ हम इनसे बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ, अच्छा सबको समझ आया? क्योंकि थम्स अप, ऐसे तो नहीं लगा कि प्रभु टाइम वेस्ट कर दिया आज तो आपने? ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इट इज से कौन पढ़ेगा? कौन कौन रीड करेगा? निशिता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। It is of utmost importance, therefore, that we know the nature of the constitutional position. We want eternity, complete knowledge, and also pleasure. When we are left alone for a long time in the impersonal Brahmajyoti, we cannot have pleasure, and therefore we accept the pleasure given by the material world. But in Krishna consciousness, real pleasure is enjoyed. In the material world, it is generally accepted that the highest pleasure is sex. This is perverted reflection of the sex pleasure in the spiritual world, the pleasure of association with Krishna. But we should not think that the pleasure there is like the sex pleasure in the material world. No, it is different. But unless sex life is there in the spiritual world, it cannot be reflected here. Here it is simple a perverted reflection, but the actual sex life is there in Krishna, who is full of all pleasure. Therefore, the best process is to train ourselves now so that at the time of the death we may transfer ourselves to the spiritual universe, to Krishna Lok, and there associate with Krishna. In Brahma Smrita, Sri Krishna and his abode are described
थोड़ा सा नीचे करिए प्रभु जी। चिंतामणि प्रकार सद्मासु कल्प वृक्ष लक्षवृत्तिषु सुरवीर अभिपलन पलयन्तं लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यामां गोविन्दम् आदिपुरुषं तम अहं भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending the cows, fulfilling all desire in abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of wish fulfilling trees, always served with the great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis or Gopi. आगे भी पढ़ना है? बस यहाँ तक हम डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू निशिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा पढ़ा निशिता ने। नाउ यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस देयरफॉर दैट वी नो द नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। वी वांट एटर्निटी, कंप्लीट नॉलेज एंड ऑल्सो प्लेजर। हमारी सोल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो नेचर है, स्वभाव है, वो क्या है कि वी वांट एटर्निटी, वी डोंट वांट डेथ, है ना। एवरीवन कैन एग्री टू दैट कि हमें डेथ नहीं चाहिए। नाउ डेथ ना हो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड कंप्लीट नॉलेज, and by that complete knowledge the byproduct will be pleasure. Automatically that will come if we are in our correct position. तो क्या होता है कि अगर हम भगवान की भक्ति में, that is the rightest thing, the best thing for us, अगर हम being in knowledge हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उससे हमें जो हमारा सोल का नेचर है वो सब फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो अचीव हो जाएगी, विच इज़ eternity, complete knowledge or pleasure. When we are left alone for a long time in the impersonal Brahma Jyoti, we cannot have pleasure. जब हम ब्रह्म ज्योति में अकेले ही भ्रमण करेंगे काफ़ी समय तक, है ना, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति, है ना, भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हुए, ओके, तो वी कैनॉट हैव प्लेजर एंड देयरफॉर वी एक्सेप्ट द प्लेजर गिवन बाय द मटेरियल वर्ल्ड। तो दैट्स वाई वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मटेरियल ग्लिटर, कि भगवान को नहीं जानते, तो जब भगवान को नहीं जानते तो फिर दिस वे और दैट वे, तो फिर हम माया की तरफ चले जाते हैं ना, मटेरियल प्लेजर्स की तरफ, खुद को प्लीज़ करने की तरफ चले जाते हैं। तो जहाँ पे हम खुद का प्लेजर प्राइमरी कर देते हैं, है ना, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस रियल प्लेजर इज एन्जॉयड। तो रियल प्लेजर मतलब दिस इज़ फॉल्स प्लेजर, कि हम खुद को सेटिस्फाई करेंगे। इट इज़ लाइक द एग्जाम्पल वी ऑलवेज डिस्कस कि ऑल द बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, जैसे हाथ है, हाथ कहे कि नहीं मैं पेट को क्यों सर्व करूँ, पेट को क्यों खाना दूँ, मैं तो खुद ही सेटिस्फाइड रहूँगा अपने आप में, तो खाना ही देना बंद कर दें पेट को, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली सारे बॉडी पार्ट्स वीक हो जाएंगे, है ना। वैसे ही इफ़ ऑल द बॉडी पार्ट्स आर वर्किंग फॉर स्टमक, पेट को सर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन अगर हो जाए कि नहीं हमें तो खुद ही इंजॉय करना है, तो फिर कैसे करो इंजॉय फिर, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण ही सबको नरिश कर रहे हैं, कृष्ण ही सबको प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ। तो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी कैन एन्जॉय, वी कैन एक्सपीरियंस रियल प्लेजर, असली सुख को हम वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन द मटेरियल वर्ल्ड इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट द हाइएस्ट प्लेजर इज सेक्स। तो मटेरियल वर्ल्ड में इट इज़ कंसिडर्ड कि सेक्स इज़ द हाइएस्ट प्लेजर, बट दिस इज़ अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द सेक्स प्लेजर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द प्लेजर ऑफ एसोसिएशन विद कृष्णा। तो यहाँ पे जो भी हम देखते हैं ना, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन परवर्टेड फॉर्म। तो यहाँ पे हम जो कुछ भी देखते हैं वो बहुत परवर्टेड फॉर्म में होता है। परवर्टेड मतलब क्या होता है? परवर्टेड सब समझ गए, है ना। तो इन द मटेरियल वर्ल्ड इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट द हाईएस्ट प्लेजर इज सेक्स, बट इट इज़ द परवर्टेड रिफ्लेक्शन। अभी कैसा रिफ्लेक्शन होता है ना, इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। जैसे क्या होता है कि यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में
बीइंग अ सर्वेंट हम कंसिडर करते हैं सर्वेंट होना एक बुरी चीज़ है, ठीक है। अच्छा तुम सर्वेंट हो, तुम नौकर हो, तुम नौकरी करते हो किसी की, अरे तुम क्या करते हो। लेकिन वहीं भगवान के धाम में भगवान का सर्वेंट होना इज द हाईएस्ट परफेक्शन, है ना। यहाँ पर मास्टर होने को हम समझते हैं कि सबसे अच्छा है कि हम सबके मास्टर बन जाए ना, हमारे अंडर काफ़ी लोग काम करें, हमारा फेम हो, हमारा ये हो वो हो। वहाँ पे खुद का जो प्लेजर होता है वो सबसे नीचे आता है और कृष्ण का प्लेजर सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो बट वी शुड नॉट थिंक दैट द प्लेजर देयर इज लाइक द सेक्स प्लेजर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। नो, इट इज़ डिफरेंट। वहाँ पर जो सेक्स प्लेजर है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हेयर, but unless sex life is there in the spiritual world it cannot be reflected here because everything here is reflected from the spiritual platform only. लेकिन we should understand कि there is a very big difference, है ना। कैसा डिफरेंस है कि everything here is in perverted form and there in pure form. No, it is different, but unless sex life is there in spiritual world it cannot be reflected here. Here it is simply a perverted reflection, but the actual life is there in Krishna who is full of all pleasure. जो एक्चुअल लाइफ है ना, जो एक्चुअल प्लेजर है वो कहाँ है, कृष्ण के धाम में ही है ना, जो फुल ऑफ प्लेजर है। Therefore the best process is to train ourselves now so that at the time of death we may transfer ourselves to the spiritual universe, to Krishna lok and there associate with Krishna. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम समझें द डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जब हम ये डिफरेंस समझेंगे तो हम जानेंगे कि हम कहाँ हैं। फिर हम इस दुनिया को बहुत खूबसूरत और बहुत प्लीजिंग जगह ना समझ के सोचेंगे एक्चुअल में जो दुनिया का नाम है, हम जानते हैं ना कैसे कंसिडर किया जाता है, दुखालयम। दुखालयम मीन्स दुखों का घर, दुख ही दुख है सारी जगह। सबसे मेजर 4 दुख तो हमें पता ही है ना, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज़, जिनको हम कभी एस्केप नहीं कर सकते इफ़ वी आर इनटू दिस मटेरियल प्लेटफॉर्म, भले ही वो कितना ही हायर मटेरियल प्लेटफॉर्म हो, है ना। मतलब कहने का मतलब है हम किसी ऐसे प्लैनेट में भी हो जहाँ पे लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, स्टिल लाइफ स्पैन तो है, देर इज़ अ ड्यूरेशन दैट विल एंड्स एट सम पॉइंट। तो भले वो 1 लाख 1 करोड़ साल क्यों ना हो, एंड तो होगा। इसलिए दिस मटेरियल लाइफ इज नॉट सो गुड। द रियल लाइफ इज वॉट, एटर्नल लाइफ, बीइंग इन द कृष्ण लोक, भगवान के धाम में रहना। तो श्री कृष्ण और उनका जो धाम है दैट इज डिस्क्राइब्ड इन ब्रह्म संहिता। कैसा डिस्क्राइब किया जाता है, ब्रह्मा जी कहते हैं, आई वर्शिप गोविंद the primeval Lord, the first progenitor, who is tending the cows, fulfilling all desire in abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of wish-fulfilling trees, always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis or Gopis. गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि आई वर्शिप गोविंद द सुप्रीम लॉर्ड, जो फर्स्ट प्रोजेनिटर है, जिनसे सबकी उत्पत्ति हो रही है ना, जो गायों के रक्षक है, गायों को दुलार करते हैं और सबके डिज़ायर्स को फुलफिल करते हैं, जिनका धाम स्पिरिचुअल जेम से भरा हुआ है, जहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ विश फुलफिलिंग ट्रीज है ना। और आपको पता है भगवान का धाम मतलब इट इज़ वेरी वंडरफुल ना। आप वो लेक्चर सुनिएगा कि इन द प्राइवेट जेट ऑल्सो आई वॉज मैंशनिंग कि प्राइवेट जेट होता है, वो प्राइवेट जेट भी कोई सिंपल नहीं होता है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि अरे क्या प्रभु जी ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे भी तो होते हैं प्राइवेट जेट वगैरह, लोग ओन करते हैं। लेकिन वहाँ के प्राइवेट जेट की बात अलग है, दैट वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर योर डिज़ायर्स आर, आपको प्राइवेट जेट में भी मिल जाएगा। मतलब इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग, वो वहाँ पे एकदम प्रकट हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर, एवरीथिंग एवरीथिंग यू थिंक एंड दैट अपीयर्स, इतना परफेक्ट है। तो वहाँ की हम जितनी व्याख्या करें ना कम है, तो वो हमें जानने को मिलता है श्रीमद् भागवतम में। तो लेक्चर आप सभी सुनिएगा, है ना।
always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis and Gopis. तो भगवान को किनका अफेक्शन है, किनका अफेक्शन मिला हुआ है, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मीज एंड गोपी. तो भगवान के धाम की ये थोड़ा सा व्याख्या है ना ब्रह्म संहिता में. ओके, इट्स ऑलरेडी 9:14. आई थिंक वी शुड कम टू द डिस्कशन पार्ट, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और कल एकादशी है, सबको टाइमली उठना है ना, सुबह 3:30 बजे 4 बजे. ओके, तो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्ण लोक. मैं ये लास्ट वैदिक स्क्रिप्चर्स तक पढ़ लेता हूँ, देन हम एंड करते हैं. This is the description of Krishna Lok. The houses are made of what is called touchstone. Whatever touchstone touches immediately turns into gold. देखिए हम कैसे बात करें, वहाँ कितना अलौकिक, एकदम जादुई सब कुछ. The trees are wish fulfilling trees or desire trees. For one can receive from them whatever he wishes. पेड़ों के पास जाइए, पेड़ आईपैड दीजिए तो आईपैड मिल जाएगा. मतलब कुछ भी मांगे आपको मिल जाएगा ना. तो इन दिस वर्ल्ड वी गेट मैंगोज फ्रॉम मैंगो ट्री एंड एप्पल्स फ्रॉम एप्पल ट्री, बट देयर फ्रॉम एनी ट्री वन कैन गेट वॉट एवर ही डिजायर्स. किसी भी पेड़ से कुछ भी मिल जाता है. कितना परफेक्ट. एंड सिमिलरली द काउज आर कॉल्ड सौरभी एंड दे यील्ड एन एंडलेस सप्लाई ऑफ मिल्क. दीज आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स फाउंड इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स. तो जो वहाँ पे गाय हैं उनको कहते हैं सुरभि, और वो एंडलेस अमाउंट ऑफ मिल्क सप्लाई कर सकती है. कितना परफेक्ट. वैसे तो अब 2 ही पैराग्राफ और बचे हैं ना, तो लेकिन फिर भी स्टिल मुझे लगता है कि क्योंकि कल एकादशी है और कल बहुत क्रूशल है सुबह जल्दी उठना, टाइमली उठना, तो यहाँ एंड कर देते हैं. आप सभी की आज्ञा से करेंगे. 3 ही लोगों की आज्ञा आई है अभी तक. ओके, सबकी आ गई. ओके, लेट्स कम टू द डिस्कशन पार्ट. क्योंकि आप लोगों ने जब वेस्टर्न कल्चर को देखेंगे, उधर सबका बहुत पर्सनल इंडिपेंडेंस होते हैं और उधर कोई किसी को जज नहीं करता है. उधर सब तरह के प्लेजरेबल चीज़ें लोग करते हैं, फ्रॉम ड्रग्स टू एनीथिंग यू कैन इमेजिन. लेकिन वो लोग के जीवन में ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेंटल इशू होते हैं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम मटेरियल प्लेजर भी बोरिंग लगने लगेंगे. दैट्स व्हाई वी नीड गॉड, बिकॉज द सर्च ऑफ गॉड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओह वाओ, परफेक्ट परफेक्ट. वाओ संभावी जी. तो ये बात बिल्कुल सही है ना, कि आप कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी आप डिस्कस करिए, आप लोगों से उनकी लाइफ डिस्कस करिए, किसी से बात करने लग जाइए. आफ्टर अ वाइल हो सकता है कि कुछ महीने आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. ओ वाओ, इनकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है, लेट मी अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस पर्सनस लाइफ. अच्छा, आप ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं. लेकिन वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी एट सम पॉइंट. लेकिन व्हेन द टॉपिक इज़ अबाउट कृष्णा, इट इज़ एंडलेस, बिकॉज भगवान की एंडलेस एक्टिविटीज़ है, एंडलेस पास टाइम्स है. आप डिस्कस करते करते थक जाएंगे, और एवरी पास टाइम बार बार रिपीट करके भी नहीं थकेंगे. जस्ट लाइक द दामोदर लीला. जब भी कार्तिक आते हैं, हम डेली दामोदर लीला को कितना ज़्यादा गाते हैं, दामोदर अष्टकम और सब, कितना अच्छा लगता है. हर बार आप बाय द एंड ऑफ कार्तिक यू स्टार्ट मिसिंग कार्तिक ऑलरेडी. कितना परफेक्ट. तो भगवान की लीलाओं को हम कितना भी हम पढ़े ना, हम कभी बोर नहीं होते. वी कैन ऑल एग्री टू दिस. गिव मी अ थम्स अप. क्योंकि देखिए कई बार ये सेशन 2 घंटे 3 घंटे लंबा हो जाता है, एंड only I am speaking, but you all are ready to listen. Why? Because the topic is about Krishna. The talks are about Krishna. क्वेश्चन आंसर वाला टॉपिक जल्दी बता दीजिए, क्योंकि एक दिन में सब कुछ याद नहीं होता मुझे, प्लीज़. ओके, क्वेश्चन आंसर वाला टॉपिक मतलब हरे कृष्णा भावना हरे जी. कृष्णा प्रभु, वो जो सेक्शन लेते हैं ना आप, जो क्वेश्चन आंसर वाला जो ट्यूसडे को होता है, हम्म. हाँ वही वाला. वो एक दिन में इतने सारे श्लोक होते हैं, मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पाती हूँ, तो याद ही नहीं होता मुझे. अरे भावना जी, हरे कृष्णा. देखिए क्या होता है कि किसी को याद नहीं होते ना, मुझे भी याद नहीं होते, लेकिन वी ऑल आर ट्राइंग, ग्रेजुअली वी ऑल आर ट्राइंग टू लर्न श्लोकाज, है ना, टू बिकम परफेक्ट. तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे. नहीं याद होते तो हम पढ़ के बोल देते हैं, है ना. जितना थोड़ा थोड़ा याद होता है वो देख लेते हैं और फिर डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे कोई
घबराने वाली बात नहीं है कि याद नहीं होते, लेकिन सिंसियर एफर्ट की ज़रूरत है कि हमें याद नहीं होता, स्टिल हमें कोशिश करना है। ओके, हाँ फ्राइडे भी नहीं, होता है। वो प्रभु जी क्या होता है ना कि जैसे मुझे मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती, तो मुझे बहुत बार उसको सुनना पड़ता है, फिर मैं प्रोनाउंस करती हूँ, और फिर मैं एक दिन में याद करती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ, और उसका मीनिंग भी जो हिंदी में याद करती हूँ वो भी भूल जाती हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखिए, आपको एक श्लोक याद नहीं हो रहा तो आप एक दिन में आधा करिए, आधा श्लोक याद करिए। और अब प्रोनाउंसिएशन की हम बात करें तो ऑलरेडी आप कोई भी श्लोक टाइप कर दीजिए यूट्यूब पे या गूगल पे, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंसियरली प्रैक्टिस करना है कि हम जैसे कहीं पे अगर ज्ञान आता है तो वो इंग्लिश में JN लिखा होता है, तो हम उसको जन पढ़ते हैं, जनान पढ़ते हैं, है ना। तो उसको ज्ञान ही पढ़े हम। ये हमें चाहिए कि हम धीरे धीरे हम डेली थोड़ा टाइम दें ना, पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिस करें कि कोई भी श्लोक आता है तो हम उसको उसके प्रोनाउंसिएशन को प्रैक्टिस करें, है ना, यूट्यूब पे देख के। ओके, तो भले ही आधा लर्न हो लेकिन आधा तो होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा 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 करके। निशिता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं भावना जी को बस यही बोलना चाहती हूँ कि याद हमें भी नहीं होता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं क्लास में भी पता नहीं मैं कैसे कैसे बोलती हूँ, सबको पता है। तो क्या है, जो टेस्ट होता है आप चैप्टर पढ़ के आइए, जो जो पढ़ाया हुआ है वो श्लोक का जो मीनिंग है वो पढ़ के आइए थोड़ा, और जो भी चैप्टर में है वो सब पढ़ के आइए, इधर आंसर दीजिए। आप कुछ बोलेंगे, बाकी लोग कुछ बोलेंगे, नया कुछ सीखने को मिलेगा, एक नया कंक्लूजन बनेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। आप पढ़ के आइए, और क्वेश्चन आंसर सेशन में तो जरूर ही आइए। बहुत अच्छा, हरी बोल। तो ओके, अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ पर 22 मेंबर्स है। आई वांट 22 ऑल इन द मॉर्निंग चैंटिंग सेशन, because tomorrow is Ekadashi. Try your best because it is for your personal benefit, your personal like spiritual upliftment. तो सब आइए, है ना। अबाउट ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में एक बार चैंटिंग करें वो काफ़ी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। एक बार आप हरे कृष्ण कहते हैं तो वो कई बार मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर आप सभी, है ना, टाइमली ज्वाइन करते हैं, है ना, विच इज़ अगर आप 4 बजे से लेकर 4:05 तक या 4:10 तक भी ज्वाइन करते हैं तो यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द डिस्कशन, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि चैंटिंग करना कैसे चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी यहाँ पर हो तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर सबको ऑलरेडी पता है तो वो डिस्कशन को हम स्किप भी कर सकते हैं। किसी को ये जानना है चैंटिंग कैसे करते हैं? ओके, दिव्या जी, सनी जी एंड ध्रुव जी, भावना जी। ओके, 4 लोगों को जानना है ना। तो मैं क्या करूँगा, ओके 5 लोगों को जानना है। तो देखिए अभी स्टिल हम इसको, है ना, स्किप कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, अपने ही जो व्हाट्सएप ग्रुप है वैष्णव संगा और प्रभुपाद वाणी अमृता, वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगा मेरी इंस्टाग्राम वाली रील। उस पर मैंने बता रखा है, मतलब शॉर्ट में आपको 30 सेकेंड्स में पता चल जाएगा। और हमारा ये जो टाइम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 10 बजे तक आप सो ही जाइए सभी, है ना, 3:30 बजे तक उठ जाइए, 4 बजे तक चैंटिंग करने आ जाइए। ठीक है, कुछ डिस्कशन। अच्छा, आज के सेशन के कुछ फीडबैक, क्योंकि आज हमने कुछ सीखा है बहुत इम्पोर्टेंट ना, तो सबको क्लियर हो गया है। किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि थोड़ा भी अनक्लियर है, कुछ थोड़ा सा रह गया है, कुछ गुंजाइश तो हम दोबारा डिस्कशन करना चाहिए करके? ओके, कुछ और किसी को कुछ कहना है, कुछ भी? और इफ़ वी आर डन, अच्छा, इज़ द टाइम ऑफ आर डेथ ऑलरेडी फिक्स्ड और कैन इट चेंज बेस्ड ऑन आर कर्मा एंड एक्शन? ओके, देखिए क्या होता है ना जतिन जी, वॉट एवर वी आर डूइंग इन द पास्ट लाइफ, उसके ही रिएक्शन हमें अभी मिलते हैं ना। इवन दिस बॉडी इज़ द गिफ्ट ऑफ माई पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ में जो भी मैंने एक्शन करे हैं उसका मुझे गिफ्ट मिला है। अब क्या होता है कि डेथ तो एक श्योर इवेंट है जो आना ही है कभी ना कभी, है ना। अब वो कभी भी आए, आज आए कल आए, लेकिन इफ़
विल बी मोर फॉर्चुनेट अगर हमें भगवान के बारे में पता चल जाए, देन हमें बाद में कभी डेथ आए, हम अच्छे से अपनी डिवोशनल प्रैक्टिस करें, चैंटिंग करें, देन जब डेथ हो तो हम भगवान तक पहुँच जाएँ। तो द क्वेश्चन शुड बी नॉट दिस कि डेथ फिक्स्ड होती है क्या। डेथ तो खैर आप चैंटिंग करेंगे ना, आप भगवान की शरण में आ गए, तब तो आपके लिए सब कुछ बहुत परफेक्ट है, डेथ भी परफेक्ट है। लेकिन होता तो है ऑफ कोर्स, डेथ भी आपके एक्शंस के रिएक्शंस का पार्ट होता है, तो वो तो खैर चेंज होते रहते हैं ना अकॉर्डिंगली। अगर आप जैसा आपकी लाइफ होती है उसी से तय होता है ना, तो वो तो कैलकुलेशन सब भगवान की प्रकृति करती है, तो वो चेंज होता रहता है। ओके, अगर आप, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती है जो भक्त होते हैं ना, इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात है, मतलब एक इंसिडेंट है जो लाइव मैंने देखा है ना, देखा मतलब सुना है। हमारे टेम्पल के डिवोटी हैं, वो बहुत दूर से आते हैं टेम्पल, मतलब कई सारे डिवोटीज बहुत बहुत दूर से आते हैं, 20-20 किलोमीटर से आते हैं ना। तो वो उबर होती है ना, उबर मोटो राइड होती है, सब जानते हैं ना। तो उससे जा रहे थे वापस घर रात को, लास्ट आरती होती है शयन आरती के बाद। तो जाते हुए क्या हुआ कि एक बड़ी गाड़ी ने, एसयूवी ने उनकी मोटो को टक्कर मार दी, और जो उबर ड्राइवर थे, जो मोटो राइडर थे, उनकी बाइक और सब कुछ एकदम ख़त्म हो गया था। लेकिन जो हमारे टेम्पल के डिवोटी थे, उनको बहुत सीवियर चोटें नहीं लगी, मतलब बहुत मिनिमल चोटें लगी, बिल्कुल हल्का हल्का खरोचे टाइप। तो मैं तो सुन के ऐसे ही हो जाता हूँ, मेरे को तो पता है कि सब भगवान देख लेते हैं, है ना। तो दोज हु आर डिवोटी, उनको तो डरना ही नहीं चाहिए, डेथ का थॉट ही नहीं आना चाहिए कि डेथ 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 कब आएगी या क्या है क्या नहीं है। हमें तो सिंसियरली बस चैंटिंग रीडिंग अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ना। फिर डेथ आए तो आ जाए, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस बॉडी ना, आ जाए कल आए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सनी जी, आप रिकॉर्डिंग क्लासेस है ना, टीपीवी भगवान दास करके एक यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया था, सो दैट वहाँ पे मैं सारी रिकॉर्डिंग्स डाल दूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स ऐसा अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये 14 to 17 GB की हो जाती है। तो इसको ड्राइव में डालने के बजाय ये यूट्यूब पे सारी मैंने डाल दी, फ्री की स्टोरेज वहाँ पे। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको चैनल का नेम बता देता हूँ, टीपीवी ओके, इस पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, अब मुझे ये बताइए, कल चैंटिंग सेशन में सब आ रहे हैं ना, गिव मी थम्स अप। अच्छा, मैं कुछ सोच रहा था ना हम सबके चैंटिंग सेशन में आने के लिए, कि अगर आप चैंटिंग सेशन में नहीं आ पाते तो व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज़ कि आप एकदम फुल वॉल्यूम पे फ़ोन रखिए, और सुबह मैं ग्रुप पे कॉल लगा दूंगा, ग्रुप कॉल, सबका फ़ोन बजेगा, तो वोट जाएंगे। अच्छा आइडिया है क्या? ठीक है, तो मैं एक कॉल कर दूंगा, है ना, 3:30 पे एक कॉल कर दूंगा, 3:30 पे कर दूँ, नींद तो ख़राब नहीं होगी। 3:30 पे कर दूँ ना, क्योंकि 4 AM पे स्टार्ट होगा, तो मैं 3:30 पे एक बार कर दूंगा। जिनको उस टाइम पे सोने का मन होगा वो 4 बजे वाला कॉल उठा लेना, क्योंकि मैं 3 बजे, 3:30 बजे एक कॉल करूँगा, 4 बजे कॉल करूँगा, मतलब उठने पर और पूरा तैयार होने पर। ठीक है, फिर 4 बजे से 7 बजे तक हम सब चैंटिंग करेंगे 24 राउंड्स। शिला प्रपाद की जय। चलिए 3:20 से कर देंगे स्टार्ट। सब उठ जाइए, बहुत अच्छा है, उठ जाएं तो, है ना। मैं तो मेरी खुशी कैसे बताऊं आपको, अगर आप सभी आ जाए ना सुबह चैंटिंग करने, मेरे को बहुत मन से बहुत अच्छा लगता है, बहुत। जब मैं देखता हूँ कोई एक नया मेंबर आ गया चैंटिंग सेशन में, बहुत अच्छा। चलिए आप सभी आइए ना कल चैंटिंग सेशन में, और एकादशी को बहुत मन से व्रत रखिए, और भगवान की डिवोशनल सर्विस में हमेशा एंगेज्ड रहिए, पूरे एकादशी पूरा टाइम भगवान के मन में रहिए, तो बहुत परफेक्ट आपकी एकादशी होगी ना। एकादशी इज़ नॉट जस्ट कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं, या कुट्टू के आटे की पूड़ी पकौड़ी बना रहे हैं, नहीं नहीं। आप बहुत मिनिमल खाइए, बहुत कम खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करिए, दिस इज़ एकादशी ओनली। ओके, चलिए, गुड टू एंड द सेशन, एंड कर दें, गिव मी अ थम्स अप।
ओके, हरे कृष्णा।